ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸ਼ੇਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਲੀ ਵਿਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਐਲੀ ਵਿਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not hearsay, it is indifference. And the opposite of life is not death, it is indifference. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਿਲਸਿਲਾ। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुरमुख, मैम गीतांजलि श्री, जसप्रीत मंड, डॉक्टर धर्मजीत, डॉक्टर नीतू, my teachers, seniors, everyone who's joined us today. Ma'am, we are already in dialogue, so this is an observation that came to my mind while I was reading the text. मैं मुकम्मल रीडिंग नहीं कहूँगी क्योंकि every text leaves something else to be read afterwards, ताकि वो connections बनते रहें, you go back to the text. Ma'am, 20th century was marked by two world wars, and in the wake of that kind of turbulent times, Walter Benjamin, he'd written an essay called The Storyteller, where he writes and records that in the 20th century, storytelling has been hit badly because of the experience, or rather he uses the term over-experience of the war. He says so much has been witnessed that it is difficult to bring it to narration. Then he also talks about the rise of information, and that is the newspaper babbling and senseless reporting that we have. Continuing that lead in the 21st century, Korean philosopher Byung-Chul Han has written a text called Demise of Narration, where he again wants us to think that although there is a lot of talk going about that one should write, one should narrate, ma'am, do you think, this is an observation as a reader, do you think, yes, we are seriously going through the crisis of narration? That is first. Second, if yes, can the art of storytelling humanize the society by providing moral, ethic, and robust response to each other? If I may start, if I may reply lovingly but rudely, that's a very bad question. Of me, I mean asking me, because it's a fairly academic question, Jyoti, and academia and academics is not my expertise, so it's not for me really to talk about or to know about what's happening in the world of narrative strategies. As a writer, I would say that a writer does not think, today this is happening, where do I fit in this? These are not considerations that the writer has. The writer is on a much more
personal and inward journey, and each writer is devising her own narrative strategy, her or his. So I think if this is right, that the world was made, is that the time you're talking about narrative? So it becoming much more difficult to carry on conventional narrative styles. It does not mean the narration stops, surely. So I'm not giving you an answer with any academic expertise, but rather an impressionistic answer after listening to you, that it is not possible that narration will stop. We have to devise other strategies. Maybe Ret Samadhi is another strategy, which doesn't follow a linear pattern, which does not follow what is called conventionally one genre. It mixes genre styles. So maybe these are all new strategies to deal with the kind of broken, sundered, fragmented world that we are living in. So I think narrative strategies have to change. That doesn't. What might have got affected is the kind of conventional narrative strategy there was. That's all. I think, ma'am, that is a very academic answer to you've really. You're forcing me in a new role. Exactly. I mean, you've really answered it the way a writer would do. Because as a reader, when you're reading theory and when you're reading text, there are so many questions. And yes, academy forces you to see things through the lens of theory. So thank you very much. And Dhananjit. Respected dignitaries of the dais and respected audiences, to continue what ma'am has said. My reading of the novel is rather depressing because it made me depressed. उसका कारण जो मैं देख सकता हूँ कि there is something called the fascism of the ordinary, जो इस नॉवल में बहुत ही खूबसूरती से बाहर आता है और मुझे एहसास कराता है कि मैं कितना बदसूरत हूँ, हो सकता हूँ संभावनाओं में, अगर ऐसी इमर्ज करे, और जिंदगी जीने की चाह को मैंने कितना दबाया हुआ है अपने अंदर और जी नहीं पा रहा। ये एक बहुत कॉमिक बात भी है कि कोई भी नहीं जी पा रहा, और मैं अपने आप को दिलासा देता हूं कि मैं भी उन जैसा हूं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन है कि जब एक तरफ हम तरल होने की बात करते हैं, फ्लूइडिटी की बात करते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही जब आप ट्वीट कर रहे थे, तरल होना, फ्लूइडिटी होना, स्थिरता को तोड़ना बिना संतुलन खोए, तो ये कैसे एक इंसान कर सकता है कि वो तरल हो, फ्लूइडिटी हो, अवचेतन को बाहर आए और संतुलन ना हो? ये कौन सी उसकी मैं में जगह है जहां पे ये बॉर्डर क्रिएट हो, जहां पे वो संतुलित भी रह सकता है और तरल भी हो सकता है? जो अम्मा है उसकी जैसे वो इतनी आज़ाद होती है, उसकी ताकत का स्रोत क्या है, कहाँ से आ जाती है एकदम से? पहला जवाब जो मैं देना चाहती हूँ वो है मैं क्या जानूं, लेकिन उसके बाद चलिए मैं बोलती हूँ। देखिए, आपने जो कहा और मैं बस सुन के रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है। और ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि लेखक ने कोई एक पीएचडी थीसिस नहीं लिखी है कि उसके बाद मैं डिफेंड कर पाऊँ और सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो वाकई में नहीं समझा सकती। मेरे जब ट्रांसलेटर्स जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे और मुझसे कुछ पूछते तो मुझे अपने काम पे रिसर्च करनी पड़ती
कि ये मैंने क्यों कहा, ये इसका क्या मतलब है। तो ये एक वो दूसरी तरह की मेंटालिटी है जिसमें एक लेखक के लिए जाना बहुत आसान नहीं होता है, और ना ही जाए तो अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ उस तरफ नहीं होती। बहरहाल, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस इन एन इमीडिएट सॉर्ट ऑफ वे। तो आप जब कह रहे हैं कि आपको एक तरह की नाउम्मीदी सी जागी, तो मैं समझती हूँ कि आपने जो भी बातें की वो तो उम्मीद का द्योतक बनती है। अगर आप अपनी मिरर इमेज देखते हैं इसको पढ़ के, तो पहला कदम तो यही है किसी भी सुधार के लिए, किसी भी बदलाव के लिए, कि आप अपने को पहचानें। अगर वाकई आप वो इंसान हैं जो आप कह रहे हैं कि हम सब इतने बदसूरत हो गए और होते चले जा रहे हैं और मैं भी वही हूँ, अगर आपने ये पहचान लिया, अपने अक्स को आपने देख लिया, तो शुरुआत तो यहीं से होगी। तो मुझे लगता है कि नाउम्मीदी की तो कोई वजह ही नहीं है, और ये काम फिर तो सार्थक हुआ इसने अगर आपको आपका असली चेहरा दिखा दिया। तो इसलिए नाउम्मीद मत होइए, बेहतर इंसान बनिए। और अम्मा कहाँ से, इसका मुझे कयास लगना पड़ेगा कहाँ से ये। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे शायद जो मैंने कहा कि आपको अपने आप को देखना जरूरी है, और हम लोग एक व्यवस्था जो हमारे लिए बनाई जाती है और जो सदियों से बनी आती है, हम उसमें अपने को फिट करते चलते हैं और अपने को देखना बंद कर देते हैं। अगर कोई चीज आपको हिलाती है, आप समाधि से निकल पाते हैं या आईने में देख पाते हैं, तो जहां पे भी ये शुरू हो जाता है कि आप अपने आप को फेस करने लगे, अपने आप को खंगालने लगे, तो वहीं से मुझे लगता है कि आप में ताकत क्या है टू बिकम योरसेल्फ। और अम्मा को क्या क्या कारण हुए, कुछ बाय चांस हो गया, या जब सब कुछ अब लगता है कि खत्म हो गया, जब सब खत्म हो जाता है एक तरह से, जब हम सब चीज को छोड़ देते हैं, कल्प तरु का भी उसमें जिक्र आता है, जब आप हर चीज को आपने उतार दिया, तब आपको पहली बार इस तरह से अपने से साक्षात्कार, और जब अपने से हुआ तो फिर आप अपनी भी मंशाएं, अपने भीतर जो चीजें छिपी थी उसको देख पाने की आप में क्षमता आती चली गई, और अम्मा में वो ताकत जो है आती चली गई। तो मुझे लगता है कि दोनों सवाल जुड़े हैं, इसीलिए आपने उनके बाद बात उठाई कि अगर आप अपने को देखेंगे तो वहीं से शुरुआत होगी। हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ये हमको अगर पता। अब वो माने अब तक जो भी उनका जीवन था उसमें काफी हद तक जो उनका अतीत था उसको कहीं दबा ही दिया था। तो अब जब उन्होंने अपने को खाली किया, परिस्थितियों ने उन्हें खाली होने दिया, तब सारी चीजें वापस आई और वो एक तरह से एक पुनर्जीवन या पुनर्रचना अपनी कर पाई। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के जवाब में यही कह सकती हूँ। मैम, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या आप उसके लेखन पर भी प्रभाव डालती है? और उसकी ये चुनौती अगर होती भी है तो आती कहाँ से है ये चुनौती? उसके अंतर्मन से या बाह्य मन से? अब इतने बड़े लेखक मेरे साथ बैठे हुए हैं कि मैं तो अपनी ही बस बात कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि चुनौती जब तक आपके भीतर से नहीं आए तो वो चुनौती आपको कुछ नहीं करेगी, आपको वो तरह तरह के पोस्चर्स में डालेगी। कि आप अगर बाहर की चुनौती आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे ये उम्मीद की जा रही है तो हमको इस तरह दिखना चाहिए, हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी, जब तक वो चीज आपके भीतर से नहीं आती, ना आप में वो कलेजा आएगा, ना आप में वो हिम्मत आएगी। और मैं रेत समाधि के बारे में आपसे ये बात बहुत ही आप इसको किसी भी तरह की मेरी डींग मत समझिएगा, मैं बहुत ही नम्रता से आपको बता रही हूँ। जिस समय मैं रेत समाधि लिख रही थी, एक दो बातें मेरे लिए, शायद जब मैं लिखती हूँ एक दो बातें मेरे लिए बहुत ही अहम होती हैं। एक तो कि कोई मेरे कंधे पे
से झांकता हुआ देखेगा नहीं कि मैं क्या लिख रही हूँ और मुझे बताएगा नहीं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखो। जो भी वो है, समाज है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो मुझे कोई नहीं बताने वाला है, ये मुझको अकेले करना है। तो ये मेरी बिल्कुल, किसी से मुझे नहीं डरना है, मुझे किसी से नहीं घबराना है, और किसी की उम्मीद को मैं पूरी करने नहीं बैठी। मेरे भीतर ही कुछ है जिसको मैं अपने लिए मैं समझना चाहती हूँ। और आपने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तो वही है कि मैं अपने को देख पाऊँ, अपने को फेस कर पाऊँ। अपने को देखने का ये मतलब नहीं कि मैं आत्मकथा लिखती हूँ, वो नहीं, पर ये कि मैं अपने को फेस कर पाऊँ, मैं अपनी पाठक बन पाऊँ, मुझे लगे कि हाँ कोई चीज यहाँ पे हो रही है। जब ये आपका जज्बा होता है तो एक चीज जो आती है, और ये मैं आपसे सच्चाई से कह रही हूँ, वो है एक खास तरह की हिम्मत कि आप असफल होने को तैयार हैं। आपको डर नहीं लगता है कि हम ये कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेत समाधि कहाँ जाएगी, कहाँ जाना चाहिए, कभी भी नहीं सोचा था। मैंने बस मैं लिख रही थी, मेरा अपना एक पागलपन था, और मुझे कभी कोई फिक्र नहीं हुई लोग कहेंगे कि क्या पागल कृति इन्होंने लिख दी है। कोई बात नहीं, मुझे मेरे भीतर ये द्वेलन है, मुझको यहाँ पे अनफोल्ड करना है, मैं करूँगी, और जो होना है देखा जाएगा। तो मैं सच बोलती हूँ कि ये बुकर कहाँ से आया और आ गया, ठीक है, उसके बहुत मजे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहलू हैं, लेकिन जो मेरी अपनी जद्दोजहद है वो अपनी जगह पहले से थी, पहले से कायम थी, और आगे भी कायम रहेगी। बुकर मिले या ना मिले, मुझे पागल करार किया जाए ना किया जाए, इस सबसे मुझे Congratulations for entry into the phenomenological view of the word novel, of the word border. I don't know the meaning of phenomenological. Phenomenological है बहुत तह पे जाना, बहुत अच्छा, डेप्थ ठीक। में जाना, Okay. इतनी गहराई से Okay. उठाना. I have read the English version. Yes, I have read the English version of Red Samadhi. Red Samadhi is divided into various chapters, very small chapters. The beauty of that novel is where the one chapter ends, the thought, the word, from there the next starts. It keeps you connected throughout. And one thing more, congratulations for keeping Hindi words in English version. That was wonderful. Like Shakarpara, Matri, Matar Paneer. Daisy's choice. Yes. अच्छा, that is Daisy's choice. Yeah. लेकिन एक जगह पे आके I was also struck कि Red Samadhi, the title of the play, title of the novel, is translated into Tomb of Sand. Well, rather Red Samadhi catches the attention of the audience. It is inspiration in itself. It is complete in itself. तो क्या ये it was a compulsory act? Red Samadhi तो Red Samadhi की तरह भी टाइटल रखा जा सकता है. दिस वाज बाकी चीजों के लिए, अब बाकी तो आपने कमेंट किया है और बहुत अच्छा कमेंट किया है, तो मैं बस खुश हो सकती हूँ, थैंक यू. पर ये जो आप कह रही है टाइटल को लेकर, दिस वाज द वन सीरियस ऑल्टरकेशन आई हैड विद माय ट्रांसलेटर एंड विद द पब्लिशर, क्योंकि मुझे भी समाधि के लिए टूम शब्द बिल्कुल गलत लगा. जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे देयर इज अ वर्ड महफिल. महफिल की I have many words in English, जैसे assembly, gathering, लेकिन जो खुशबू महफिल वर्ड की है, that has no match to English or any other. देखिए, ये ट्रांसलेशन में हमेशा होगा कि आपको एग्जैक्ट वही कैरेक्टर, वही पर्सनालिटी नहीं मिलेगी, तो आपको दूसरे तरह के खेल करने पड़ेंगे, और बिना लिटरल हुए आपको एक नई तरह की जीवंतता उसमें लानी पड़ेगी. तो ये एक तरह से डेजी का काम आसान था, क्योंकि ये किताब बहुत ही एक्लेक्टिक बनती है इन ऑल द थिंग्स, इन द जॉनर, इन द थीम, इन द लैंग्वेज. तो पहले ही मिक्स ऑफ लैंग्वेज थी, तो शी ऑल्सो कुड प्ले विद द मिक्स ऑफ लैंग्वेज, एंड शी डिसाइडेड कि कुछ चीजें वो हिंदी में रखेगी. हो सकता है जो मैंने अंग्रेजी में रखी है उसने उनको हिंदी में रख दिया, और उल्टा के. और टाइटल का बस मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मुझे भी टूम को लेकर बहुत परेशानी थी, क्योंकि समाधि इज नॉट द एंड. समाधि इज अ स्टेट, इट्स एन इवॉल्व्ड स्टेट, व्हाइल टूम इज समथिंग व्हिच इज जिसमें कि एक शव
has been just embalmed and kept inside. तो मैंने इस पर बहुत ऑब्जेक्ट किया था और मैंने कहा था कि मैंने भी कहा था समाधि शब्द वैसे अब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ गया है, तो मैंने कहा व्हाई कांट यू जस्ट रिटेन दैट, बट द पब्लिशर दे हैव डिफरेंट कंसिडरेशंस, सो द पब्लिशर सेड दैट वी वांट इट टू बी, nobody knew it was going on to get the Booker and then it wouldn't matter what the title is. But at that point she said that we want people to go into a bookshop and look at it like another book of literature, not a book about the exotic East, yoga, spiritualism, blah blah, which samadhi can evoke. So they didn't want to use a very exotic word, orientalist, exotic, Eastern, spiritual word. Yeah. जब मैंने ये नॉवल पढ़ा और साथ में थोड़े दिन पहले इनका भी नॉवल पढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि कहानी को नई तरह से बताना है। जैसे अभी आपने एक एपिसोड भी पढ़ा और इसमें बहुत सारे हैं कि अगर दरवाज़ा है तो उसके बहुत सारे आगे चलता है, दीवारें हैं आगे बहुत चलता है, कि किसमें है कि आप ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं, तो ये एपिसोड जब ये आता है किसी राइटिंग में, तो उसमें राइटर की, लेखक की दखल अंदाजी ज्यादा बढ़ नहीं जाती कि आप उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं? नहीं सॉरी, मैं समझी नहीं आपकी सब बढ़ जाती है क्योंकि आपने यही पढ़ा तो ऐसे लगा कि जैसे जो नॉवल का वो कुछ सुना रहा है, उस कथा में ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, एल्यूसिव नहीं है, पाठक के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, राइटर दिख रहा है अभी। प्रेजेंट है, एल्यूसिव है। वैसे तो एक माने में इसमें राइटर ने अपने को एब्सेंट होने की कोशिश भी नहीं करी है, लेकिन राइटर ने अपने को भगवान की तरह नहीं इसमें कोशिश की। राइटर में भी देयर इन एंड आउट, पर असल बात मुझे लगता है कि जो इसमें हुई है वो है कि हर चीज का जुड़ा होना जो लिखने वाली थी उस पर भी प्रकट होता गया और कहानी के डायनामिक में भी प्रकट होता गया कि हर चीज जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। हर इसीलिए किसी कहा नॉन एंटिटी सब कुछ जो है वो कहानी कहते हैं, विटनेस बनते हैं और आधी अधूरी है। तो अगर लेखक है तो वो भी आधी अधूरी ही है, सब कुछ उसको नहीं पता है, तो जो भी है वो अपना थोड़ा समझते हुए एक चीज पूरा एक बना। और जहाँ तक कॉन्शियस दखलबाजी इसमें लेखक ने बिल्कुल नहीं करी है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जब इसको लिखना, और मैं कभी भी पहले से नहीं जानती कि मेरी कथा नॉवल बनेगी या शॉर्ट स्टोरी बनेगी, ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ जाएगी। तो मैं इंतज़ार करती हूँ उस इंस्पिरेशनल कह लीजिए मोमेंट का इंतज़ार करती हूँ जब कथा को अपनी टोन, अपनी चाल मिल जाएगी और वो खुद मुझे गाइड करने लगेगी और रास्ते सुझाएगी। तो ये इस तरह से ये बनी है। तो मुझे पहले ये भी नहीं मालूम था ये कौन से बॉर्डर क्रॉस करने वाली है और पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तान से चली जाएगी, कुछ भी नहीं मुझे पहले से पता था। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਸ की मतलब मैं तो समझ रही हूँ पंजाबी, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने आप से। नमस्ते। उसके साथ में जुड़ लेता हूँ कि कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो आपसे छूट गया, जो खुद अपनी कहानी कहने लगा हो, जो आपके कंट्रोल में न रहा हो, क्योंकि आपके नॉवल में हर चीज कैरेक्टर है। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो खुद अपनी कहानी कहने लग गया हो। और दो साथ में क्वेश्चन हो रहे हैं, एक तो ये है कि आपने जगह जगह पर कथा के बारे में टिप्पणियां करी है अपनी किताब में, कथा क्या होती है, कथा कैसे कही जाती है। तो ये आपका इस पे कोई फिलोसफिकल टेक है या कॉन्शियसली आपने ये किया है, या ये कथा कहते कहते आपके मन में आई है बातें जो साथ में लिखी गई। और तीसरा है आपने मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, आप इतने सारे बोलेंगे मैं भूल जाऊंगा। हाँ। और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में आपने ना। एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में मेरे उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि
कैसे बुकर इज लाइक एन टॉर्च ऑन मी। हाँ तो आपने बोला था कि जो पहले भी बात हुई है कि आप तो पहले से लिख रही हैं और बुकर के बाद जो सोशल मीडिया की वजह से जो आपका जो एरिया वास्ट हुआ है उस पर जोर। अच्छा ठीक है, उस पर बोलूंगी, देखिए अभी भूल गई पहले क्या पहले है। तो आपका कोई ऐसा कैरेक्टर है हाँ। जो आप नहीं, ऐसा कैरेक्टर आप एक तो आप जानते ही हैं, आप उसकी उसीलिए आप पूछ रहे हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर है जो आता है और कहता है कि मैं आई डोंट बिलोंग टू दिस नैरेटिव और मैं क्यों आया हूँ, माफ कर दीजिए, मैं भी चला जाता हूँ, तो बार बार आता है। पर फिर से पूछिए जरा सवाल शॉर्ट में जरा। कोई कैरेक्टर आप हाँ। आप जो देखिए हमेशा ये जो है किताब, चूंकि एक तो बहुत इसको वक्त लगा लिखने में, और ये इसकी विषय वस्तु जो है वो अपने आप बहुत फैलती चली गई, जिसमें कि एक मूल कहानी भले ही बनती हो, उसमें बहुत सी कहानियां जुड़ती चली गई और सब कुछ कहानी कहने लग पड़े। हाँ, तो ऐसे कथा में तो हर हालत में छूटेंगे लोग, होंगे ही, हमेशा होंगे। अब किसी ने मुझे लगता है कि ये काफी अहमकाना बात है, किसी ने एक रिव्यू में लिखा कि इसमें आप दलित एंगल नहीं आया, तो ये कोशिश थोड़ी हो रही थी कि हर एंगल आ जाए, लेकिन जाहिर है कि आप एक समाज और दुनिया की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ है ना, तो कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहेगा। तो इसमें ऐसे क्या मतलब कैरेक्टर्स जो नहीं आ पाए वो तो हैं ही, उनकी बहुत कहानी हो सकती है, बड़े की और कहानी हो सकती है, बड़े की पत्नी की और कहानी हो सकती है, वो जो अंग्रेज बच्चा है उसकी और कहानी हो सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड की और कहानी हो सकती है, तो नॉन स्टॉप है और आपको सब चीजें ऐसे हवा में छितरी हुई हैं, आप उसमें से बटोरते हैं और एक कुछ आकार बनाते हैं, तो उस तरह से ये नॉवेल बना है, जाहिर है। लेकिन मेरे कोई ऐसी चिंता में नहीं था कि इसके बारे में लिखना है और रह गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक तो ये, दूसरा क्या था, जल्दी से कथा के बारे में टिप्पणी करती, जैसे कथा की कोई मुख्य धारा नहीं होती, क्योंकि आपका फिलोसॉफिकल टेक है, कॉन्शियस है, कथा को लिखते लिखते हो गया बस, कथा के बारे में कथा क्या हो। मुझे लगता है उसके पीछे वही, क्योंकि इसकी जो मैंने आप अभी कहा कि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे हर कृति, मेरे लिए हर कृति एक नई कृति होती है, नया ऐसा कुछ नहीं है कि 4 पहले लिख चुकी हूँ तो 5वीं मेरे लिए आसान होने जा रही है, क्योंकि 5वीं क्या बननी है, किस चीज पर है, उसको अपनी एक वॉइस खोजनी होगी, और उसके साथ साथ मैं वॉइस खोज रही हूँ। तो शुरू करती हूँ तो थोड़ी सी कोशिश उसमें होती है, लेकिन जब तक वो अपनी वॉइस एक तरह से कहिए कि नेचुरल तरह से वो नहीं अपनी उसकी वॉइस सुनाई पड़ने लगती, तब तक अभी चली नहीं। जब वो हो जाता है तो फिर देन इट टेक्स इट्स ओन कोर्स एंड आई कैन फॉलो इट अलोंग। तो इसमें आप जो बात कर रहे हैं कि ये क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, कैसे इतना कुछ क्या सोच के नहीं, लेकिन चूंकि इसकी जो वॉइस थी, इसकी जो चाल थी, वो अपने आप बन गई अबाउट बॉर्डर्स, अबाउट नॉट रिकग्नाइजिंग एनी बॉर्डर। तो कोई बॉर्डर अगर बनने लगता कि नॉवल या कहानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ शुरू करिए और उसका मध्य बताइए और उसका अंत बताइए, जैसे ही कोई बॉर्डर बनने लगता, कुछ मेरे भीतर से एक ठोकर मारता, हंटर मारता कि इसको तोड़ो, तो बॉर्डर से बाहर हो जाती, तो बॉर्डर को क्रॉस करती और एक दूसरी विधा में चली जाती। तो उस तरह से बहुत सी विधाएं उसमें आती चली गई, और ये भी था उसमें कि राइटिंग प्रोसेस क्या है, कहानी कहने का प्रोसेस क्या है। और एक सवाल बाद में चलिए याद आया। मैम, मैं आपसे जटिलता के विषय में बात करना चाहता हूँ कि आपसे अक्सर ऐतराज के रूप में कहा जाता है कि आप बहुत जटिल लिखते हैं। इस बात का एक जवाब तो यह हो सकता है कि जटिलता और सरलता कोई निरपेक्ष विषय नहीं, यह सापेक्ष विषय है। इस बात का एक और पहलू भी है जो कि विचारधारा और राजनीति से गहरे रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कहा जाता है कि फांसीवाद का सरलीकरण से सीधा संबंध है। ऐसे में
हमारे आज के भारतीय समाज में जटिल होने का क्या महत्व हो जाता है, हमें जटिलता से क्यों मोहब्बत करनी चाहिए? जटिलता से मोहब्बत करने की बात नहीं है, सरलीकरण से आपको जरूर एतराज करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें जानबूझ के राजनीति के तहत गायब करी जाती हैं अक्सर, तो उससे जरूर एतराज करने की जरूरत है। पर जटिलता कोई अपने में वैल्यू नहीं है, लेकिन जिंदगी जटिल है, इंसान जटिल है। जटिल का मतलब क्या होता है कि बहुत सी परतें हैं, कोई बात बस ऐसी सीधी सपाट नहीं है। अगर आप किसी इंसान से भी मिलेंगे तो अगर उसकी कुछ परतें हैं तो वो और दिलचस्पी तो होगी या होगा। तो इतना जटिलता को लेकर आप लोगों ने ऐसा हवा क्यों बना रखा है? और मेरे पे ये जरूर मेरे से ये बात बार बार कही जाती है, तो मैं उसके दो जवाब दूंगी। एक तो अगर आपको चीज जटिल लग रही है तो अपने में झांकिए जरा, मेरे पे क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? आप अपने को देखिए कि क्या हो गया है मुझे कि जरा सा कोई चीज पे टिकना पड़े, सोचना पड़े, रुकना पड़े, तो हमको लगता है ओहो ये जटिल है। हमको इन्होंने बिल्कुल ऐसे उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलाते हैं क्यों नहीं चला दिया है? क्यों हमको चाहते हैं कि हम खुद भी थोड़ा सोचें, रुकें, दोबारा पढ़ें? तो ये अपने को भी जरा कभी अपने गिरबान में झांकिए, मेरे पे ही मत इल्जाम लगाइए। दूसरी चीज, जटिलता के बारे में हमको ये ख्याल, एक तो जटिलता बहुत अच्छी चीज है, जटिल होने के लिए कोई जटिल हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप देखिए हर चीज के कितने पहलू हैं, कोई भी चीज अब आप देखिए कि कभी कोई ये भी आपसे कह सकता है, जापान की पूरी एक फिलॉसफी है अबाउट शैडोज, कि शैडोज का क्या महत्व है हर जीवन में और एस्थेटिक्स में। क्योंकि अब शैडोज में आपको सब चीज साफ नहीं दिखती, तो एकदम जो क्लियर ब्राइट डे लाइट जिसमें कि आसमान नीला ही है, पेड़ हरा ही है और कोई और चीज जैसा उसका रंग होना चाहिए बस उतना ही है, तो वो एक बहुत ही आसान सी पिक्चर बनती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ रह भी जाता है। तो वो शैडोज जो है, अगर कोई चीज उधर इशारा कर देती है तो उससे तो और आनंद आना चाहिए। और साहित्य में गीतांजलि श्री तो बच्ची है, बड़े बड़े भरे हुए हैं जिन्होंने बेहतरीन चीजें और जटिल चीजें लिखी हैं। आपको शेक्सपियर आप अपने आप बैठ के पढ़ेंगे तो उतने आसानी से नहीं समझ में आएंगे, आपको यूनिवर्सिटी में कोर्स करना पड़ता है। आपके अपने देश में, मैं तो माफ करिए गुरु ग्रंथ साहिब को उस तरह से नहीं जानती हूँ, पर जरूर उसमें वो भी जटिल होगा। रामायण महाभारत एक सिंपल तरह से भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितनी और चीजें हैं। और जटिलता से कभी भी, जटिल और सरल होना इज नॉट द प्रॉब्लम। सुंदर है कि नहीं, आनंद दे रहा है, कुछ आपके अंदर कुछ छेड़ रहा है, वो ज्यादा जरूरी है देखना। अब आदेश तो आप ही का होता है। मैं बस ये मान रही हूँ कि इसके बाद मुझे डॉक्टर उपाधि मिल जाएगी, पीएचडी मिल जाएगी। मैम ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤ ਸਮਾਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ अंग्रेजी ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ? ये तो आपको मुझे ट्रांसलेट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ मुझे ਹਾਂ? कुछ अंदाज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? कोई प्रॉब्लम है कि हम अपनी मदर टंग से दूसरा मोहब्बत नहीं कर सकते, उसके
बारे में क्या हो सकता है, कि क्या आर्गुमेंट हो सकता है वापस होके हम वापस, और दूसरी बात कि हम क्या हो जाता है अगर हम अपनी भाषा के साथ। मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा उससे आधे से ज्यादा जवाब आपके पास है, पहले से आप जानती हैं। हम अपनी भाषा से अलग हुए हैं क्योंकि हमारा एक खास इतिहास रहा है, और वो इतिहास अंग्रेज राज जो हमारे पे रहा है, जिसमें कि एक पूरी हायरार्की बन गई भाषाओं की, जिसमें अंग्रेजी सबसे बड़ी थी। और अंग्रेज चले गए, वो हायरार्की चलती रही, वो सफलता की भाषा बनी रही, और अगर कुछ उसमें हो सकता था तो वो रही सही कसर अमेरिका ने आकर पूरी कर दी। तो आज की दुनिया में फिर से अंग्रेजों की वजह से जो कुछ भी कसर बची है वो अमरीकियों की वजह से हो रहा है कि सबको अमेरिका जाना है, अंग्रेजी वहाँ की भाषा है, अंग्रेजी सफल भाषा है, तो सब चीज में अंग्रेजी सबसे ऊपर है। भाषाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर भाषा बहुत सुंदर भाषा होती है। अगर आप 10 भाषाएं जानते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में हमको जरूर सोचना है। हम अपनी भाषा से क्यों कट गए, उसके बारे में क्या करें। हम इसलिए कट गए हैं कि एक तो हमारा ये वैल्यू सिस्टम हमने बना लिया है जिसमें हम अपनी भाषा को कम समझते हैं। ये लेकिन कहने से ये चीज नहीं बदलेगी, हमको और ऐसा करना पड़ेगा कि वो हमारी भाषा हमारे जीवन निर्वाह की भाषा बने, वो सहज तरह से हमारी भाषा बने। जितना भी उसमें अच्छा लिखा जाएगा, अच्छी बातचीत होगी, उसमें डिस्कशंस होंगे, जितनी वो हमारे लिए, मतलब जैसे बॉलीवुड ने किया है, हिंदी को बिना कहे हिंदी को बढ़ा दिया है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों के भीतर उतरी है। तो इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हम क्या करते हैं, हम सबको क्या करना चाहिए टू मेक आवर लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वी मस्ट रियलाइज कि हमारी लैंग्वेज की क्या जगह है, और हाउ टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल लाइफ। और क्या हम गंवाते हैं, इस पर मैं कहूंगी कि स्मृति जो है वो सिर्फ हाल की नहीं होती है, एक कल्चरल स्मृति होती है। तो अगर आप अपनी भाषा गंवाते हैं तो आप बहुत सी एक कल्चरल स्मृति जो आपके अवचेतन और अचेतन में बैठी है वो भी अफेक्ट हो जाती है। तो हम कोई बहुत, मतलब एक नई भाषा आप अंग्रेजी सीखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जो आपके पास खजाना है उसको फेंक देने की क्या जरूरत है, उसको भी आप जरा संजोइए, संभाल के रखिए। ये हम गंवाते हैं, अपनी भाषा गंवाते हैं। आप सृजनात्मक लेखक होते हुए अनुवाद की भूमिका, अनुवादक की भूमिका को कैसे देखते हैं? और दूसरा, आप हमें जो आपके मनपसंद हिंदी के 5 उपन्यास हैं उनके नाम क्यों? मैं 5 बताऊंगी तो जो मेरे 20 और हैं बहुत ही मनपसंद वो रह जाएंगे। 20 बता दीजिए आप। नहीं, 20 तो फिर बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन आप लोग कोई एक सवाल क्यों नहीं पूछता है, सब पहला कह के फिर दूसरा फिर तीसरा करने लगते हैं। तो देखिए, इसी में पहला सवाल भूल गए। अनुवाद, अनुवादक मैम, आप लेखक हैं, आप जब अनुवादक करते हैं, अनुवाद करते हैं, तब आप कैसे सोचते हैं? मैं तो अनुवाद करती ही नहीं, तो मैं कैसे सोचूं? अनुवाद अपने में बहुत बड़ी चीज है। अनुवाद के जरिए हम नए पाठकों तक पहुंचते हैं। भले ही हमको ये थोड़ी फिक्र हो कि हमारी चीज उसी तरह से जा रही है या थोड़ी बदल के जा रही है, लेकिन हमको ये तो मानना पड़ेगा कि अनुवाद के ही जरिए हम जगह जगह पहुंच पाए। भाई, अनुवाद ना होता तो हम टॉल्स्टॉय को कहाँ से पढ़ते? हम इतने सारे जो दुनिया के विश्व साहित्य के बड़े बड़े नगीने हैं, हम उन तक कहाँ से पहुंचते? हम मर्ण साहब तक मैं कैसे पहुंचूंगी अगर अनुवाद नहीं है? तो ये तो अनुवाद की तो अपनी जबरदस्त जगह है, जो भी उसकी मुश्किलें हैं उसके साथ साथ। और दूसरा सवाल, अनुवाद मैं नहीं करती हूँ तो मैं उसकी इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको बता सकती। दूसरा सवाल आपका था, मैं बोलूँ 5 उपन्यास। देखिए, आप बस, मैं 2-3 लेखक के नाम ले देती हूँ। कृष्णा सोबती मेरे लिए बहुत बड़ी लेखक है, निर्मल वर्मा, मैं हिंदी की बोल रहे हैं ना, हाँ, निर्मल वर्मा। आप मैंने कहा ना कितने छूटेंगे, विनोद कुमार शुक्ल,
श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, हमारे ये इस्मत चुगताई, मंटो, बस चलिए हिंदी उर्दू दोनों को बता दिए। हाँ, आपके प्रयास में शुरुआती दौर में एक अध्याय है नहीं वाला, तो नहीं। हमारे जीवन में नहीं की इतनी अहम भूमिका कैसे बन सकती है? जब हम पिंक मूवी देखते हैं तो उसमें भी जो नो है उसका डायलॉग इतना मतलब हो गया कि लोगों ने शायद उस डायलॉग की वजह से उस फिल्म को ज्यादा देखने की इच्छा जाहिर की है कि नो अपने आप में एक नहीं शब्द नहीं, एक वाक्यार्थ है। और आपका पूरा, मुझे एज अ रीडर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शब्द पर ही पूरा उपन्यास टिक गया है और वो नहीं से नई बन जाती है, नो से न्यू तक का सफर। ये कैसे? तो नहीं, आप नहीं कहेंगे तो फिर नया बनना पड़ता है ना उसके बाद तो। और नहीं, आपको आप किन चीजों को नहीं कहते हैं? जो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अच्छे लोगों की बात कर रही हैं जो इंसानियत को और बढ़ाने की तरफ जाना चाहते हैं, तो नहीं, आप उन्हीं चीजों को कहेंगे जिनमें इंसानियत की कमी आपको दिखाई पड़ रही है, जिनमें आपको कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, आप उसी को कहेंगे कि नहीं, अब ये नहीं, मेरा आदमी मुझे पीटता है, अब मैं नहीं इसको बर्दाश्त करूंगी, ये नहीं होगा अब। तो ये नहीं बहुत जरूरी है। और अगर मैं ये कर पाई, जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, नहीं करूंगी, उसी के बाद मैं नहीं बनूंगी, शायद मैं पीटना शुरू कर दूंगी अपने आदमी को। बैठा हुआ है सामने। Ma'am, yes, ma'am, you talked about this yesterday as well, and it is something that pervades the novel as well. The indifference that sometimes is not just within the characters, but within the society at large. Yeah. My question is from the perspective of the human condition. Is it that the human condition has become more indifferent, or is it that indifference has colored society at large and so has trickled down into the humanity as such? Yeah, there's no you can't carry, you can't sit and pick up nuggets and say, well, this is because of this and this is because of this. General situation is that there is a lot of indifference today because people are too hot in a lot of their own pursuits, because people have lost a lot of, people are insecure, people have lost a lot of faith and don't really know where to go, they're a bit lost. So that has meant that people have become a lot more self-focused. They don't have time for much else, so they're just moving like this. And so that creates indifference, certainly. But also, I think we humans have a tendency to get habituated. We get habituated to scenes of poverty, to scenes of inequality, to see, in a war situation, children get habituated to violence, and those are the dangerous things, because those are the things which breed indifference. So indifference can come from many, many quarters, and that is something which a sensitive society, a cultured society, has to be vigilant about. Just a tiny addition, ma'am. I'm sorry to take up more of your time. But ma'am, humanity has seen so many great calamities, and usually these calamities have produced something equally as big. The Dark Ages resulted in the Renaissance in some way. The World Wars resulted in great luminaries like Eliot and Pound. It seems that these, as you said as well, that these calamities is something that humanity has become habituated to. Why is it that it has become habituated as such at this particular point in humanity, when it has seen so many things that might have been a lot more calamitous when it comes to intent or effect? No, well, again, that's not a question I can answer with any great expertise. But I think something that is different today from the earlier times is the amount that the world is opened up because of technology. So I think the way the world is available to us, or the way we are exposed to what is happening in remote parts of the world, may not have happened to the same extent earlier. But calamities would always have been there, and regeneration would also always have been there. और महाभारत की तो आप कथा जानते ही हैं, वो तो है ही इसी के बारे में, और महाभारत ही चले जा रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अच्छा जी, आपने अभी बताया
कि आपकी पर्सनल जद्दोजहद थी जिसने आपको मजबूर किया ये नॉवल लिखने पर, और जैसे अभी जिन्होंने पेपर प्रेजेंट करे आपको लगा कि वो आपका नॉवल था ही नहीं, वो कुछ और था या नए एस्पेक्ट्स नहीं ये नहीं लगा। हाँ सॉरी, आप बोलिए। नए एस्पेक्ट्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रीडर शायद आपकी जो अपनी जद्दोजहद है उसको कभी नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाता कि पर्सनल जद्दोजहद है तो वो क्या थी। और आपने कल हमें बताया कि लेखक को भी कभी नहीं पता होता कि वो क्या डिस्कवर कर ले अपने आप में, क्या ट्रॉमेटिक जो हम यूजुअली डिसअवाउ करते हैं। तो आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही है इस नॉवल को लिखते? आप अपने आप को उससे पहले और उसके बाद लिखने के बाद कैसे देखते? देखिए मैं आखिरी बात पे पहले आती हूँ। मैं इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या क्या सोच के इसको लिखा। मैं ये कहूँगी कि देखिए लंबे वक्त तक मैं इसके साथ थी, तो जो मेरे उसमें कितनी सारी चीजें रही होंगी। मेरी पर्सनल समझ, सोच, इतिहास, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, वो सब तो था ही, लेकिन एक पूरा मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। मेरे आसपास जो लोग हैं उन सब का हिस्सा हूँ। तो ये सारी चीजें मिलकर, आई मीन सो मेनी थिंग्स व्हिच गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ नॉवेल। तो ये क्या क्या चीजें किस किस मात्रा में गई हैं, आई विल नॉट बी एबल टू टेल, बट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इंस्पायर्ड मी एंड द वर्क केम इनटू बीइंग। और फिर बोल गई देखिए दूसरा हिस्सा। मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, तो मुझे साहित्य से जुड़ा ही मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आपका जो नॉवल है रेत समाधि, उसमें आपने भारत पाक विभाजन की बात की है, लैंगिक समानताओं की सीमाओं की बात की है, नारी अस्मिता की बात की है। और जैसे कि हमारे साहित्य में देखते हैं कि जो रचनाकार है अपने आप को एक विचारधारा, एक विषय धारा से जोड़ लेते हैं, तो आप उस लड़ी में अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये मेरा प्रश्न है। मैं उस लड़ी में अपने आप को खोज ही नहीं रही। जब ये मुझे डॉक्टर की उपाधि दे देंगे, पीएचडी दे देंगे, तो मैं कहूँगी कि देखिए यहाँ मैं पाती हूँ अपने को उस लड़ी में, लेकिन मैं उसमें अपने को खोज नहीं रही। देखिए हम लोग सब अपना एक कोई काम चुनते हैं, कोई विधा चुनते हैं जिसमें हम अपने को एक्सप्रेस कर पाएं, अपनी बातें कह पाएं, दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं। मैंने लिखना चुना है, मेरा काम लिखना है, मैं लिखती हूँ, बाकी सब आवाजाही, आनी जानी। Ma'am, I wish to ask you if you could have a conversation with any literary figure from the history, who would it be, and may please ask why? I mean, if it is not. मैं इसमें भी कहूँगी there are too many people. There are too many. So I'll give one answer, but I'll think of many others. I can't immediately think of any one person. गांधी हो सकते हैं, कोई बहुत सी औरतें हो सकती हैं, कोई मुझे लगता है as a writer I'm also very interested in the not the great figures, but the hidden away figures. I would like to meet more Rosies. I would like to really मैंने बहुत कुछ दूर से ही देखकर और इमेजिनेशन से वो कैरेक्टर मेरे किताब में आ पाई। मैं चाहूंगी कि बहुत ही क्लोज तरह से मैं ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को जानूं। तो एज अ वुमन आई वुड से माय इंटरेस्ट रियली इज इन द ऑर्डिनरी। और इसमें किताब में मुझे याद आ रही है एक लाइन है जिसमें कि अम्मा जब वो खैबर में थर्ड सेक्शन में है कि दिन का वो वाला वक्त है जब आपकी शैडो लंबी पड़ती है। तो अम्मा छोटी सी है, उसका सिकुड़ गया है बुढ़ापे से, तो छोटी सी अम्मा खड़ी है और उसकी बहुत लंबी परछाई पड़ रही है। तो मैं इसी चीज को मानती हूँ कि साधारण छोटे लोग, उनकी बहुत लंबी परछाई है, ये हमको देखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सो इस तो पहला कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੁਦੀਪ ਚੰਦਰਾ ਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ